जफर साहब, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जफर साहब एक्चुअली यूएसए में किसी जगह पे हैं। वो जो भी अपने बारे में चाहें वो बताएंगे। और मैं उनसे जो उम्मीद कर रहा हूं कि जिये सिंध मूवमेंट जो चल रहा है पाकिस्तान में, एक इंडिपेंडेंट सिंध को लेके, उसके बारे में हम सब लोगों को अवेयर करें इंडिया में। और जो लोग भी देखना चाहें, जो आप कहना चाहें, दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि इंडिया में काफी कम लोगों को आपके बारे में और आपके मूवमेंट के बारे में पता होगा। तो ओवर टू यू, प्लीज प्लीज गो अहेड। थैंक यू। Thank you. Thank you. Namaskar. Namaskar, Bharat. And good morning here in America. Uh, Thank you for reaching me out, Vivekji. And it is really honor for me. I am talking to a veteran and who has served long. And जो भी बाद में ये वीडियो देखेंगे तो I again say Parnam from occupied Sindh, which is occupied by Pakistan. I am a proud Sindhi of Indus Valley civilization. I am not Pakistani. I follow my Sanatana Dharma. First, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं सभी दर्शकों को कि I am graduate civil engineer and graduate in economics. I completed my graduation in 2004 from Sindh University in civil engineering. Because पाकिस्तान में सिंध को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, तो हमारे लिए वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है इतनी। जी। तो 2004 में मैं दुबई मूव हो गया। From 2004 till 2017 I lived in Dubai. स्टार्टिंग के 4 years मैंने जॉब की। After 4 years I started my small construction company, maintenance actually company in Dubai. And later on, after 2 years I started my recycling company in Dubai. जी। मेन मकसद क्या था कि सिंध के नौजवानों को मौके नहीं मिलते थे, जॉब्स नहीं मिलती थी। जी। तो जितने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ग्रेजुएट होते थे उनको वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी। तो इन 2009 I started Sindhi Engineers Association in Dubai to bring out all Sindhis who are graduate or who are not able to get the jobs opportunities in Sindh occupied Pakistan because of discrimination. Found professional and non-professional laborers. I got like 250 people out of Sindh and got jobs for them in Dubai, United Arab Emirates, Oman, Qatar. So the main idea was to help out financially the people of my land, which was full of resources, but as it is under occupation, nothing is for us, but everything of us is for Punjab dominated Pakistan. From student life, I was part of Jeay Sindh Student Federation, JSAF, which was a student wing of Jeay Sindh National Movement. In 2015, when I visited Pakistan, जी।
when I visited my motherland, Sindh, Pakistani military and intelligence agencies जी tried to abduct me. They tried to put me in jail. They attacked at my home village. And the case they put against me on the charges of that I am helping separatist movements against Pakistan. I am financially supporting groups who are against Pakistan. जी Is they then didn't succeed to arrest me. Within 4 hours, I came back to Dubai. I managed and I came to Dubai back within 4 hours. And later on in 2015, 2016, and 17, they tried to take me back from Dubai to Pakistan. They offered me many things. My passport was almost about to expire because I was holding the Pakistani passport and they were not renewing it. जी They said if you will surrender, we will renew your passport. So I don't had any other option because in Dubai, if your visa or passport is expired, you cannot live there anymore. You become illegal. So that was the reason I traveled to United Kingdom, London. I tried to settle over there, but the things was not favorable to come to United States of America, and I am political asylum case. So I am living in exile since 2017 here in United States of America on political asylum seeker case, and I am a refugee here. I cannot go back. So that was about या me and about my life हाँ here. Here in United States, I got the job in government, but later on I left the job because it was difficult for me to be part of any government department here and doing the activism and political work. So now I do Uber and running my financial things for me and for my family. In same time, I am doing my political work and dharma work. तो जफर साहब मेरा जो आपसे पहला सवाल होगा वो ये होगा कि इंडिया में सब लोग पख्तूनिस्तान पीटीएम का कोई मूवमेंट है, उसके अलावा बलोचिस्तान का मूवमेंट है, जीए सिंध के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन कम लोग जानते हैं। और दूसरा एक इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपका जो मूवमेंट है, जो आपकी वेबसाइट मैंने देखी है, तो उसमें आपने क्लियरली लिखा है कि नॉन वायलेंट मूवमेंट है आपका सिंध को यू नो एक्वायर करने के लिए या इंडिपेंडेंट सिंधु देश बनाने के लिए। तो आपको लगता है कि नॉन वायलेंट मींस के थ्रू आप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, जबकि आप बलूचिस्तान को देखो तो पूरे वायलेंट मींस हैं, पीटीएम का आपको मालूम ही है। तो आपका क्या इस पे ओपिनियन रहेगा? तो हम जाते हैं कि जाते हैं कि जीए सिंध मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ सिंधु देश कहाँ से स्टार्ट होती है। जी हम सबको मालूम है कि हिस्ट्री ऑफ सिंध इज
as old as the civilization of human being, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से आगे जाएं 10-15,000 years बैक आप अगर सिंधु सभ्यता और सिंधु सरस्वती माता सिविलाइजेशन, या आप महाभारता में जाएं तो महाभारता में जो है कौरव्स एंड सिंध का जो सिंध नरेश का जयद्रथ जो है किंग था, रिसेंट हिस्ट्री मिलती है वो मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और हमें एक 4,000 years बैक हमें एक सिविलाइज्ड सोसाइटी मिलती है, जिसके अभी जो हमें मोहनजोदड़ो के आसार मिले थे या हड़प्पा के आसार मिले थे। तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंध 4,000 साल पहले कितनी खुशहाल और एक लेटेस्ट प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी। बहुत अमीर एंड जो लोग थे वो अपने एक कल्चर, अपने सोशल स्ट्रक्चर के साथ वहाँ पे रह रहे थे। बिकॉज ऑफ दैट रिच कल्चर एंड फुल ऑफ रिसोर्सेज, हमेशा सिंध पे अटैक्स होते रहे। सिंध एंड हिंद को मैं अलग नहीं समझता, ये दोनों एक ही आप ऐसा समझें कि सभ्यता के दो नाम हैं। ओके ओके। तो सिंध पे टोटल 1100 हमले किए गए। जी 1100 1100 times Sindh was attacked ओके because of its prosperity, because of its uh, vibrant society. ओके Western countries, Middle East, सेंट्रल एशिया, बहुत सारे कौमों ने हमारे ऊपर अटैक किया, जी लेकिन हिंद ने डिफेंड किया हमेशा। एंड 950 times out of 1100 times we defeated our enemies. जी लेकिन जो 7वीं सदी में हमला होता है सिंध पे, जी सिंध was attacked by Arab invaders. जी उस टाइम हमारे जो सिंध के लास्ट हिंदू किंग थे वो थे महाराजा डाहिर। जी महाराजा डाहिर तीन was our last Hindu king of free सिंधु देश। जी तो अरब हमारे ऊपर कंट्रोल करके जी कुछ साल तक हमारे ऊपर रूल किया अरब्स ने। जी ट्राई के ये जो एक हिंदू सभ्यता थी, सनातनी एक देश था, उसको इस्लाम में चेंज किया। जी They tried to destroy our culture, they tried to destroy our roots, they tried to destroy our history, और हमारे देश को मुसलमान बनाने का वो एक रिलीजियस कंट्री की तरफ लेके आए। जी अरब्स के बाद हम देखते हैं 7वीं सेंचुरी के बाद, उसके बाद फिर मुगल आए हमारे पास, मंगोल्स आए, काफी मुस्लिम रूलर्स ने
जो है सिंध पे अटैक किया और वो हिंद तक गए, आगे तक गए। और इंडिया में भी जो हम लास्ट देखते हैं वो मुगल शहनशाहियत रही वहाँ पे। जी। तो सिंध वाज ऑलवेज गेट वे टू हिंद, यानी यस। सिंध से होके जो जी। भी इन्वेडर आता था वो हिंद तक पहुंचता था। 17th सेंचुरी के बाद हम आते हैं कि जब मुगल दौर था 18वीं सदी में, तो उस टाइम सिंध वाज इंडिपेंडेंट कंट्री। जी। सिंध वाज independent country, but the like it was a colony of Mughals, but it was still a independent country. We had our own prime minister, we had our own जी। autonomy, but of course it was managed from Delhi, from Mughal Darbar. जी। तो हम 18वीं सदी में देखते हैं कि ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट में आता है हमारे पास। जी। And when British came to India, जी। they realized that Sindh is also an important geopolitical strategy place. जी। They can reach out because I said you that Sindh was always the gateway to South Asia. जी। क्योंकि अगर आप मैप पे देखें जी। तो सिंध और बलूचिस्तान का जो कोस्टल बेल्ट है जी। वही सिर्फ हॉट वाटर्स हमारे पास हैं। मींस वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंडियन ओशन। जी। तो मुंबई को ब्रिटिश यूज कर रहे थे एज ए पोर्ट, बट क्योंकि वहां पे ज्यादा वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जी। दे needed one more port which will be near to them। तो उन्होंने सिंध पे अटैक किया। जी। 18 1839 में जी। ब्रिटिश ने सिंध पे अटैक किया। एंड विद इन 4 years दे conquered सिंध। जी। सिंध का पूरा जो एरिया था उसको इन्होंने कन्क्वेयर किया और सिंध जो है मुंबई प्रेसिडेंसी में चला गया। जी। ब्रिटिश राज या जो ब्रिटिश रूल चला वो 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक हम देखते हैं कि सिंध आल्सो बिकम द पार्ट एंड ऑल इंडिया वाज आल्सो रूल्ड बाय ब्रिटिश। कहीं कहीं पे हमें सेपरेट स्टेट्स, प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स देखने में आती हैं, जैसे कश्मीर हो गया या जैसे बलूचिस्तान हो गया, या यानी एक था, लेकिन जो कंट्रोल था पूरा वो ब्रिटिश का था। मिड 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि ब्रिटिश को डिफीट होती है हर जगह पे, स्पेशली वार बिट वार सेकंड वर्ल्ड वार में जो जी। ब्रिटिश जी। को डिफीट हुई जी। ऑन ऑल फ्रंट्स। ब्रिटिश को यहाँ से कैसे भी जाना था। जी। ब्रिटिश वांटेड टू लीव दिस प्लेस। और स्पेशली जब सुभाष चंद्र बोस ने आर्म स्ट्रगल स्टार्ट की एंड he joined with Germany and he joined with Japan. जी। That was also a headache for British Raj. They were losing their not only their forces, but they were losing a lot of money जी। in Asia. So जी। they decided
to go back. That time there was a threat of communism, जी socialism, which was started from Russia. जी British always were smart, so they knew that if they leave this region of our whole South Asia region, जी it is going to be a strong, not only economical, but a superpower country with huge masses, because 70% population is on our belt side, on our South Asia side. जी So leaving India like that in hands of Subhash Chandra Bose, it was never in the favor of British, जी because Subhash had relations with Russia also. जी So British were afraid that if they will leave this region, maybe tomorrow Russia, even China, India, they all can be joined, and the Western rule or influence on South Asia may be decreased or maybe go away. जी So they planned to create Pakistan by using ideology, जी which ideology was always there from time of Modudi, and some Islamic scholars from Bangladesh, from UP, from CP. There जी was always differences between Hindu and Muslims. जी So they decided to use that factor and divide this whole region in parts. जी So India should not be a superpower in near future, and India should not join with Russia, because if they are going to join hands together, it is going to be a forever end of supremacy or influence of Western countries. British created Pakistan just to weaken India on the basis of religion. जी जी And in that process, they used their pawns. जी The pawns we know very well. Like, I will give you simple example of Mr. Janah. जी Mr. Janah was a secular person. जी Mr. Janah was a secular person. जी But suddenly, when he visited London in 1945, जी and he came back, जी he joined with Gandhi, जी and he became a good Muslim. So British used Mr. Jinnah and few people in India जी who were on their payroll जी to not only create Pakistan, but to create other small countries in the region by using their puppets, which can serve the interests of British. And they removed Subhash Chandra Bose, because Subhash Chandra Bose idea was totally about a great Bharata, one nation,
one country for all people of भी थे उसमें मुसलमान भी थे उसमें पारसी भी थे everyone was उसमें बंगाली भी थे तो everyone was together जी अच्छा 1940 में एक रेजोल्यूशन हुआ था उसको लाहौर रेजोल्यूशन बोलते हैं जी लेकिन बाद में उसको नाम दिया गया पाकिस्तान रेजोल्यूशन जी Pakistan resolution of 1940. जी Actually, it was not a Pakistan resolution, but it was Lahore Accord or Lahore resolution, जी in which all leaders from different parties and different ethnicities they joined. There was Broadies who want to uh, join together in the name of Islam and a Muslim country, जी they can be part of this new created. Still, the name was not decided, but there was just an idea that जी a country for Muslims. Later on, that came in paperwork about Pakistan, and British gave a go ahead to Mr. Jinnah that okay, you can have your country which is more Muslim populated states or the places who want to join with you. जी Bangladesh was Muslim populated. जी Pashtuns, Khyber Pakhtunkhwa, today's Khyber Pakhtunkhwa were Muslim populated. Sindh was also Muslim populated. Balochistan was also Muslim populated. But there was few concerns by not only by Bangladeshi people, but Sindhi, Baloch, and Pashtun people. जी Our leaders met with Gandhi and Nehru that okay, if you want um, to allow Mr. Jinnah to create a country for Muslims, जी how it is going to be work? Because in the name of religion, it doesn't make sense to create a nation or to create a country. जी So they came with idea that okay, the states which will join are the provinces who will join with uh, a new country which was in the process of creating. जी Those all provinces will be independent, so and only the federal system will be together. जी These countries will be autonomous, and they will be having their own language, their own culture, their own values, which religion or which ways they want to follow. जी People of Sindh were happy that okay, we are going to be part of new country, जी but we are going to have our autonomy, we are going to have our values, we are going to have our resources and everything for us. जी Same way, Bangladesh also joined, जी but Balochistan didn't joined because they said no, we want to be independent, जी we want to be a separate country. जी So later on in 1948, we can see that after creation of Pakistan, they annexed or invaded Balochistan in 1948, and it became the part of Pakistan. Until जी 1948, Balochistan was not part of Pakistan. Within few years,
we can see, yeah, here I want to mention about Pashtuns, जी that some factors of Pashtuns, they wanted to be part of New Pakistan, but lot of people from Pashtun area and leaders, they wanted to go with Afghanistan. जी They wanted to be part with Afghanistan because they consider, that's why is still the Durand line, which separates the Pashtuns from Afghanistan and Pashtuns of Pakistan. They don't accept it जी because they say, they are saying that we are the same. जी After creation of Pakistan, within few years, we can see that because as Pakistan was created, Mr. Jinnah visited Bangladesh, and openly he said over there that the language will be Urdu. जी We cannot see any traces of Urdu in Sindh, Balochistan, or Pashtuns, or Punjab before Pakistan. जी Urdu was the language of UPCP or some, Mughal यस uh, descendants. जी But when they came to Pakistan, जी they implemented Urdu language. जी So Bangladesh started protesting. Bangladeshi people started protesting जी against जी uh, this new language, जी which was Urdu. जी And Jinnah said that, okay, now the national language will be Urdu, जी and your new identity will be Pakistani. जी On these both uh, lines, which was given by Jinnah, Bangladesh refused to be Pakistani because they wanted to keep their identity जी and they wanted to keep their language. जी Same way in the Sindh, we Sindhi people also reacted. Our leaders reacted against it, that Urdu language, we don't accept Urdu language. जी We don't want new identity of being Pakistani because our identity since thousands of years is Sindhi, and our जी language is Sindhi. जी Our culture and our history is more powerful, beautiful, and strong जी than created this new identity. जी And then later on, third thing, which was very important, that was that it will be a Islami Jamhuriya Pakistan. जफर साहब आप बता रहे थे कि हाँ जी पाकिस्तान हाँ, में फिर उन्होंने कहा sure. कि इस्लामिक जमहूरियत बनाएंगे लैंग्वेज का इश्यू हो गया तो उस वजह से फिर जो सिंधी सभ्यता वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम शुरू हुई आगे बढ़िए Sindh started revolting against Pakistan, जी or same time it you know tensions was started in Balochistan also. Point जी in the leadership of Bacha Khan, he was not happy with this new created Islamic country. जी Bangladesh also started revolting. We will talk later about this also. हाँ For it, 1948, जी 1948 में ISI बनाई जाती है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विस, जी and it was created by British जी in 1948. जी And ISI जो उस टाइम बनाई गई, इट वाज ऑल अबाउट पंजाब. जी उसमें जितने ऑफिसर थे वो पंजाबी थे या आज़ाद कश्मीर से थे. जी
There was no Sindhi representation, there was no Bengali representation, there was no Balochi representation, there was no Pashtun. I think there was one Pashtun in uh, top level of new created intelligence agency of Pakistan. लेकिन जी, ISI was created by British. ओके, तो जो यहाँ के लोग थे, they start realizing Sindhi, Baloch, Pashtun, Bengali that, oh, this new created Pakistan is under dominance of Punjab. ओके, Punjab is given the role to rule this new created country, and that was given to them by British. ब्रिटिश, Because still 1955 we can see that it was a Dominion country. जी, Dominion country means it was under British. जी, Why they gave the powers to Punjabi people? Because they were more obedient. हम्म, They were more obedient and good servers. They followed all the time British जी, laws, जी, but Sindhi, Baloch, Pashtun, Bangladeshi people, they were not much obedient. जी, British knew from day first जी, that Bengali, because of experience of Subhash Chandra Bose, they knew that Bengali never can be trusted जी, to be their servants. जी, Sindhi people never can be trusted because Sindhi people are more inclined with Sindhu Sabeta, means Hindu Sabeta. जी, Sindhu and Hindu Sabeta are the same. जी, So who they got? They got only Punjabi. जी, I am I am not like a racist or some kind of. I don't have any problem with जी, being a living together. I believe in diversity. जी, But अगर इस्लाम के नाम पे कोई चीज गलत होती है, तो जी, ऑफ कोर्स आई विल टेक आउट द नेम ऑफ इस्लाम, दैट जी, ओके भाई, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इस्लाम. जी, अगर पंजाबी के नाम पे कोई चीज हो, तो ऑफ कोर्स आई इट इज माय राइट दैट आई विल से दैट ओके दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस. जी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो जब आईएसआई बन गई और हम देखते हैं कि पंजाब डोमिनेटेड हो गया और 1956 में वन यूनिट हो गया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाह के साथ, और जनाह की जो सिस्टर थी फातिमा, उसके साथ इन्होंने पंजाबियों ने क्या किया. जी, जनाह को इवन एम्बुलेंस नहीं दी. जी, जनाह को जब अटैक हुआ था तो उसको एम्बुलेंस भी नहीं दी. जी, तो this whole new created country become Punjab dominated. जी, एंड एक और फैक्टर जो जिसके नाम पे ये कंट्री बनाया गया था, जी, वो थी आइडियोलॉजी ऑफ मोददी. जी, मोददी जो कि एक इसका इस्लामिक स्कॉलर था, हाँ, हाँ, उसको बाद में जमियतुल इस्लाम या जी, जमियत का नाम देके ये दो फैक्टर हम देखते हैं कि पाकिस्तान को रूल करना शुरू कर देते हैं. जी, जी, एक पंजाब डोमिनेटेड पाकिस्तान और इस्लामिस्ट ग्रुप्स, यस, they joined the hands together and they started persecuting people. थर्ड, जो इनके साथ एक ग्रुप मिल जाता है, that is called the feudals. यस, 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 Because this whole region was dominated by feudal families. जी, There were few feudal families. जी, They were controlling the people. They were they were ruling this region.
सो पंजाब ने क्या किया कि जो फ्यूडल क्लास था, जी बिकॉज feudal class always see their interests. They don't care for the people. They only care for their interest. जी So they chose few families from Sindh and from Balochistan, which were feudals, like 5 or 10% जी people of any society जी were controlling the areas, जी and they starting ruling not only Sindh, Balochistan, Pashtunistan, and Bangladesh. जी Military was 75% by, since creation of Pakistan, 75% military was from Punjab. जी Still, till now, after 75 years, you cannot see any Sindhi journal level जी in Pakistani forces. You बिल्कुल cannot see any Baloch जी on journal level. ओके You cannot, before Bangladesh freedom, you जी cannot see any journal from Bangladesh. जी But Pashtuns were together. Pashtun and Punjabi, you can see a lot of Pashtun people, because use the Pashtun people also in that process. जी जब 10-20 साल पाकिस्तान आगे जाता है, जी आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ 60s 70s, जी तो ये जो डिफरेंसेस थे लैंग्वेज के, इकोनॉमी के, पावर शेयरिंग के, वो बढ़ते चले गए. जी And because of these differences, we can see the movement of Free Bangladesh was started in 1965, 1966, and वो आगे चल के और भी स्ट्रांग हो गई. एंड in 1971, वो in इंडिपेंडेंट हो गए 1971 we can see the free independent हो गया. बिल्कुल अभी देखिए, मैं सिंपल आपको बताऊं कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंट क्यों हो गया. जी बांग्लादेश 65% रेवेन्यू जनरेट कर रहा था पाकिस्तान के लिए. जी ठीक है, यानी जितनी प्रोडक्ट थी, जितने नीचे नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो बांग्लादेश से लाके पाकिस्तान में लाए जाते थे. और पाकिस्तान वाज एंजॉयिंग, एंड Pakistan means military establishment, elite class, and feudals and bureaucrats were enjoying the perks of resources of Bangladesh. बिल्कुल और जब बांग्लादेश में कोई बाढ़ आती या कोई नेचुरल डिजास्टर आता था, तो पीपल वर डाइंग देयर. जी Nobody wanted to care of them. बिल्कुल इवन आप देखें कि जो ब्यूरोक्रेसी थी या मिलिट्री थी, मैं ऑलरेडी उसका जिक्र करके आया कि बांग्लादेश को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी. जी तो वो जो एहसास महरूमी थी, जी दे टुक बांग्लादेश टू फ्रीडम. Sheikh Mujib was friend of Saint G.M. Sayed. Now let's come back to Sindhu Desh यस यस movement. यस So Sheikh Mujib was the friend of Saint G.M. Sayed. And who's Saint G.M. Sayed? Saint G.M. Sayed was our leader, who is founder of ideology of Sindhu Desh. जी Even you can say that the first resolution of Pakistan in 1947 जी was passed by G.M. Sayed. He जी was the actually leader of Sindh. जी But later on, when he realized, and when he saw the condition of Bangladeshi people, जी he realized that, oh,
it was promised to us that this new country will be Sindh will be given autonomy power, but जी when Punjab refused of it and Pakistan refused of it, and they tried to take out our language, they tried to take out our representation. जी Saint GM said after um, independence of Bangladesh uh, called for freedom of Sindhu Desh. जी So the freedom of Sindhu Desh was started in 1971 ओके ओके after freedom freedom of Bangladesh. जी That if Bangladesh can behave their freedom, जी हमारा सिंध का तो एक बहुत तारीख हिस्ट्री और हमारा कल्चर रहा है, तो why we should be the colony of Punjab dominated Pakistan. बिल्कुल अच्छा, वो डिफरेंसेस और बढ़ गए जी इसलिए कि अभी जो रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान के लिए, वो सिंध 65% रेवेन्यू जनरेट करता है, सेम लाइक बांग्लादेश. जी बिफोर बांग्लादेश वाज जनरेटिंग रेवेन्यू 65%. तो बांग्लादेश जो आज़ाद हो गया, तो पंजाब के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. दे डोंट हैव एक्सेस टू हॉट वाटर्स. जी लैंडलॉक्ड प्रोविंस है पंजाब. जी तो उनको जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, उनको जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो दुनिया के साथ डीलिंग चाहिए, वो सभी सिंध के थ्रू चाहिए होती है. जी जी दे आर डिपेंडेंट ऑन सिंध सिंध एंड बलूचिस्तान. जी तो या तो Sindh generates 65% revenue for Pakistan. जी Sindh contributes 75% natural resources जी uh, to Pakistan. जी And Sindh is Sindh is the Indus River flows from the जी center of the Sindh. So on both banks, on both sides of Indus River, we have hundreds of thousand hectares of crops. जी Every mostly पाकिस्तानी जो नीड्स हैं फूड की, वो जी सिंध से होती हैं, पूरी होती हैं. जी तो सब कुछ सिंध से होता है, लेकिन सिंध के पीपल 80% पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं. जी जी ये तो मैं समझ गया जफर साहब 80%. बिल्कुल हाँ, आपका जो है ना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अच्छा खासा चल रहा है और जितना रेवेन्यू वहां चल पे रहा है, ठीक जनरेट है. हो रहा है डेवलपमेंट इतना नहीं हो रहा है नेग्लेक्टेड है नो डाउट अबाउट दैट अब मैं आपसे Not leave the development, but I'm saying that people are living under poverty line, 80% population. जी अच्छा, तो अभी मिसाल के तौर पर यानी एक लैंग्वेज हो गया, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया. जी सिंध को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आज भी कोई जर्नल नहीं है. जी हालांकि सिंध जो है, अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें पाकिस्तान को, तो पंजाब के बाद दूसरा जो बड़ा सूबा है पॉपुलेशन वाइज, दैट इज सिंध. जी लेकिन सिंध को कुछ भी वापसी में नहीं मिलता है. जी तो फ्रॉम देयर our struggle started, and when Sai GM said in 1971, जी declared and he announced that we will start our movement of free Sindhu Desh, जी Sai GM Sayed was arrested. ओके ओके And Sai GM Sayed was arrested, and later on they tried to put him on the trials in the court, and they declared him as a Indian agent, and they declared him that he want to
separate Sindh from Pakistan. He is anti-Pakistan, जी and raced on his all life. He died in 1995. जी 30 years. He spent his whole 30-year life in prison. माय गॉड ओके हम्म He wrote 65 books during his ओके arrest. जी Yeah. So till now, our 55 key leaders of Sindhu Desh movement जी are killed by ओ Pakistani ओके agency, intelligence agencies. ओके यहाँ पे हमें कुमार जी ये देखना पड़ेगा कि सिंध में रिवॉल्ट क्यों नहीं हुआ, या इतना इंडिपेंडेंस का जो आपका क्वेश्चन था कि फ्रीडम मूवमेंट क्यों हाँ नहीं आगे जा रही, बिल्कुल उसका रीजन ये है कि सिंध इज कंट्रोल्ड बाय फ्यूडल क्लास। पंजाब ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जी कि 5-6 फैमिलीज हैं सिंध जी में जी जो लोगों को कंट्रोल करती हैं। जैसे भुट्टो फैमिली हो गई, हाँ जैसे जरदारी फैमिली हो गई, जी मिसाल के तौर पर, जैसे पीर पगारा हो गया, जी जैसे यानी बहुत सारे ऐसे और भी ट्राइब्स हैं। जी दे control the masses, and ओ these elite feudal people, they are puppets of military establishment and Punjab dominated Pakistan। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था कि फ्यूडल क्लास को जो है वो पंजाब पालता है, पाकिस्तान पालता है, मिलिट्री जी एस्टेब्लिशमेंट पालता है। जी तो दे आर सर्विंग देयर इंटरेस्ट। अभी जी जो भुट्टो फैमिली सर्व कर रहा है 20-30 साल से, जी इवन भुट्टो वाज उसको हैंग किया था इन्होंने, जी लेकिन स्टिल दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। बेनजीर भुट्टो को असेसन किया था, लेकिन स्टिल भुट्टो फैमिली डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके एंड दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ। तो सिंध में मासेस बहुत ज्यादा हैं। जी वी आर 6 करोड़ की आबादी है सिंध की। जी तो जितना फ्यूडल क्लास है, ब्यूरोक्रेसी है, जी दे दे आर इन अपर हैंड। ओके ओके अच्छा, सिंध में जितने भी मिलिट्री यानी सिंध के हर सिटी में इन्होंने एक मिलिट्री गैरसन बनाया हुआ है, एक जी मिलिट्री कॉलोनी बनाया हुआ है। जी जी तो अच्छा, और दूसरा फैक्टर ये है कि सिंध में इन्होंने इस्लामिस्ट ग्रुप्स को इतना स्ट्रांग कर दिया है, जी यानी एवरी other every village, every city, you can see that these ISIS, Al Qaeda, and different organizations of Jamaat Islami, Badr al Shams, and Sipah Sahaba, Jamaat al Dawa, they are all present in Sindh। तो जी अगर कोई भी सिंधी स्ट्रगल की बात करता है या आज़ादी की बात करता है, तो या तो उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मार देती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको उठा देती हैं, अ, या तो उनको जेल में डाल देती हैं। अभी भी हमारे 400-500 जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं नेशनल फ्रीडम के, वो मिसिंग पर्सन्स हैं। ओ और ऐसे ही हजारों सिंधी जो हैं वो पाकिस्तानी जेलों में हैं। जी और हाँ, ऑन फेक चार्जेस, वही जी नेशनलिस्टिक थाट का जो हम्म है वो प्रोसेस है। हम्म, और अभी यानी मैंने बताया आपको कि 55 हमारे जो की लीडर्स थे, अभी तक उनको इन्होंने जी मार दिया है। जी तो हमारे 3-4 दुश्मन हैं सेम टाइम। एक तो फ्यूडल क्लास पीपी या जो सिंध गवर्नमेंट हो गई, एक
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, और जी एक हो गया हमारा जो ये इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं। जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आप 1947 में देखें तो हमारे सिंध में कोई 2-3 हजार मदरसे थे। जी यानी दोज वर नॉट रेडिकल इस्लामिस्ट जी आइडियोलॉजी, जस्ट जी ऐसे ही होके यानी मस्जिद हो गई या कहीं पे। लेकिन अभी जो है सिंध में 55,000 मदरसाज हैं। ओके ओके तो यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर हमारे लोग जो कराची प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, दे जी वर अटैक्ड बाय इस्लामिस्ट ग्रुप्स, नॉट वन टाइम, 2-3 times, ओके एंड they were rising these the flag of Islamic State, black flag of ओके Islamic आई State in ISIS openly वाले in ओके Karachi. या सो पंजाब ने एक तो यानी ये मुल्लाओं को उधर बिठा दिया है, दूसरा जी फ्यूडल क्लास को बिठा दिया है उधर। जी और अभी एक और चीज जो सिंध में ज्यादा है कि हमारा जो डेमोग्राफी है जी उसको फास्ट वे में चेंज किया जा रहा है। जी मिसाल के तौर पर अगर हम 10-20 साल पहले देखते हैं तो सिंध पर मोर पॉपुलेटेड इन सिंध, जी लाइक हमारा जो रेशियो था वो जी 60-65% था, लेकिन वो अभी 50 पे आ गया है। जी यानी हमारा जो रियल ओनर्स ऑफ सिंध हैं जी उनको वो किया जा रहा है डेमोग्राफिक्स चेंज करके, बाहर के सेटलर्स को सिंध में लाके, यानी ओके पंजाब में उनको नहीं रहने देते। दे आर जी ब्रिंगिंग देम, यानी कोई भी जी पनाहगीर हो, रिफ्यूजी हो, अफगानी हो, या वो जो है रोहिंग्या हो, जो जो भी हैं, ओके बर्मी हो, जो भी इस्लामिस्ट थाट के लोग हैं, उनको जी वो सिंध में आके आबाद करते हैं। और पंजाबी जो है अभी मिसाल के तौर पर न्यू प्रोजेक्ट्स इन्होंने स्टार्ट किए हैं, बहरिया टाउन हो गया, डिफेंस फेज हो गया, तो जी उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज ये दे रहे हैं वो पंजाबी लोग आके प्रॉपर्टी खरीद करते हैं, और दे आर इन द फास्ट प्रोसेस दे आर चेंजिंग अवर डेमोग्राफिक्स। तो ओ अभी सिंध की जो पॉपुलेशन है वो 50% तक रह गई है। एंड ओके जिस जिस तेजी से ये कर रहे हैं, डेमोग्राफिक्स चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास हम अकलियत में हो जाएंगे। we will we will become the minority in coming 10 years, how fast Punjab is changing our demographics. ओके अच्छा, उसमें भी इनका एक फोकस है। जी वो फोकस क्या है कि आप 1946 में देखते हैं कि 26% पॉपुलेशन है हिंदूज की, जी हिंदूज की, जी लेकिन वो अभी 1.3% पे आ गई है। जी 26% से 1.3% पे आ गई है। जी ये आप जो हिंदुओं पे अत्याचार देख रहे हैं, जी फोर्स कन्वर्जन, और जो बिजनेसेस लूटे जा रहे हैं, मंदिर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जी यानी पार्टीशन के creation of Pakistan, at the time of creation of Pakistan, there were 400 historical mandirs in जी Sindh, जी एंड वो अभी 71 रह गए हैं। जी बाकी सभी मंदिर या तो तोड़ दिए या उनको मदरसों में चेंज कर दिया है। और पॉपुलेशन एक एक्सोडस हुआ है, जी यानी जो 26% हिंदू पॉपुलेशन थी, बिकॉज दे आर रियल ओनर्स, दे आर रियल सन ऑफ सिंध, जी तो उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो वहां से निकले, और उनकी जितनी भी जमीनें हैं, प्रॉपर्टीज है, या जो बिजनेसेस हैं, वो इस्लामिस्ट ग्रुप्स को डोनेट किए जाते हैं, मस्जिदों को डोनेट किए जाते हैं, मदरसों को डोनेट किए जाते हैं। तो हम एक तो तरफ से देख रहे हैं कि यानी वो इंडिया के नफरत में हो रहा है या हिंदुओं की तरफ से, क्योंकि ये मुल्क जो बना है पाक आस्तान मीन्स ओनली द प्लेस फॉर प्योर पीपल, प्योर पीपल मीन्स हु आर द इस्लामिस्ट।
ओके। who are true fanatics. लेकिन हिंदू, सिंधी, बलोच ये तो फेनाटिक नहीं है ना, वो तो जी अपनी सभ्यता, अपने हिस्ट्री, अपने वो रूट्स को देखते हैं। जी तो दे देट इज दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू exodus these all Hindu population from जी। Sindh। और वो ओके। जो अभी 1.3 पे रह गई है, लेकिन even within 5-10 years there will be not even 1% of Hindus remaining in Sindh। तो हम यही बोल रहे हैं कि भाई ये जो एक सिस्टमिक जेनोसाइड ऑफ कल्चर, जिस सिस्टमिक जेनोसाइड ऑफ आवर हिस्ट्री, जिस सिस्टमिक जेनोसाइड ऑफ आवर रूट्स एंड आवर सिविलाइजेशन, सिंधु जी सभ्यता की जो हो रही है, that must be stopped and it is our natural right to be free। तो अभी जो यानी सिंध मूवमेंट का मैं बाहर जो ये काम कर रहा हूँ, या और जो जितने सिंधी ग्रुप्स हैं वो काम कर रहे हैं, हम यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई सिंध एक हिस्टोरिकल कंट्री रहा है, एक हिस्टोरिकल हमारी सिविलाइजेशन रही है, हमारी जी रूट्स रही हैं। और जो सिंध में जितना भी अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस देखें तो दे आर ऑल कनेक्टेड टू सिंधु सरस्वती माता सिविलाइजेशन एंड लॉर्ड शिवा का जो है सबसे ज्यादा जो है जी मिसाल के तौर पर शिवा स्थान, लंगम, काली माता, जितने भी हमारा यानी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, जी वो हम हमें यही बताते हैं कि वी वर ट्रू ट्रू सनातनी एंड नाउ Pakistan is continuously trying to make us fanatical same like them, make us same Islamist radical like them। जी That is in other aspect। तो जब आप सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं तीन साइड से, एक तो आपका रिलीजियस, एक आपका इकोनॉमी, एक आपका जो है पावर, वो तीनों चीज आपके पास नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, हाउ यू कैन फाइट अगेंस्ट दीज कल्पर्ट्स, हाउ यू कैन फाइट अगेंस्ट। हमारे पास कोई अपना कौमी सरमाएदार नहीं है जी सिंधियों के पास, कोई अपना हमारे जितने हिंदू सिंधी थे उनको फोर्स्ड किया गया, वो वहां से चले गए जी जो बिजनेसेस संभालते थे। जी अच्छा, जो अभी बिजनेसेस या जो ज्यादातर पैसा है वो किसके पास है, या पंजाबियों के पास है, या तो जो महाजर वहां से यूपी सीपी से आए और उनको जो बेनिफिट किया गया वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास तो अपना सिंधियों के पास या ज्यादा गुर्बत है, 80% पीपल लिव अंडर पोवर्टी। जी फ्यूडल्स तो हमारे साथ आएंगे नहीं कि वो हमें सपोर्ट करें। जी आपको किसी भी कंट्री या किसी भी फोर्स के साथ लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? जी यू नीड economy, you need जी lot of money, you need जी lot of resources। जी स्पेशली जब आपके एनिमी एक तो एटॉमिक पावर हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, उनको वेस्टर्न लेटेस्ट वेपन्स हों, उनके पास जहादी फेनाटिकल्स हों, तो हाउ इट इज इजी टू फाइट विद देम। जी अच्छा, वहां पे बलूचिस्तान में लोग लड़ रहे हैं, उसकी क्या रीजन है या वो कैसे लड़ रहे हैं? देखें, जो आप अगर मैप पे देखेंगे ना, तो बलूचिस्तान वाज सिंस स्टार्टिंग इट वाज ए ट्राइबल टाइप ऑफ जी प्रोविंस। जी वहाँ पे ट्राइबल एक सिस्टम रहा है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे आपको जो है लोग दिखाई देंगे जो मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे रहते जी हैं, दे कैन फाइट इजीली एंड दे कैन हाइड। और उन वहाँ पे क्योंकि फ्यूडल क्लास भी था, और बहुत टाइम जो ऐसा भी रहा है वहाँ पे कि मोस्टली जो अभी ऑर्गेनाइजेशंस जो फाइट कर रही हैं ना, वो जी या तो डिसेडेंट्स हैं नवाब अकबर के, या जो बीएनएम हो गया, या जी बीएलएफ हो गया, जी मेहरान मरी हो गया। तो
these people had a lot of money. जी उनके पास रिसोर्सेज थे, दे हैड $1 million, क्योंकि बलूचिस्तान जो जब तालिबान के खिलाफ फाइट हो रही थी ना, तो रूट वाज कमिंग फ्रॉम बलूचिस्तान, एंड they had a lot of resources. और रिसोर्सेज। ट्राइबल कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर ट्राइब का जो सरदार है वो अगर अपने लोगों को बोल देता है कि भाई ओके, टेक अप आर्म्स, तो वो आर्म्स उठा लेते हैं। जी लेकिन हमारे सोसाइटी में क्या है कि सिंध, जो आप मुअन जो दरों से लेकर देखें आज तक जो है ना, सिंधी लोग भी जैसे हिंदू नेचर है ना, जी वही सेम नेचर है हमारी। जी हम 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 यानी अपने वो कोशिश करते हैं कि हमारी जो फितरत है कि हम किसी को नुकसान ना दें, हम किसी को हर्ट ना करें। जी लेकिन अभी जो क्या हो गया है कि जितने यानी सख्त वे में या जितने हार्ड वे में जी पंजाब हमारे ऊपर हमलावर हुआ है, जी वो फ्यूडल क्लास के थ्रू हो, वो रिलीजियस थ्रू हो, तो हमें अभी उस तरफ जी जाने की जरूरत है। अच्छा, जो आपने एक सवाल किया था कि नॉन वायलेंस और वायलेंस, जी देखें आज़ादी जो होती है ना, जी आज़ादी या वतन का हासिलात जो है वो किसी आइडियोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी नॉन वायलेंस आइडियोलॉजी है या आपकी वायलेंस या रेजिस्टेंस पे जी आप जी बिलीव करते हैं। आज़ादी के लिए हर हर तरीका इस्तेमाल किया जाता है। आज़ादी के ओके लिए आप मिसाल के तौर पर आपके घर पे दुश्मन अगर आ जाए और आपको कब्जा कर ले और आपको घर से निकाले, तो आप क्या बोलेंगे कि ठीक है भाई, तुम कब्जा कर लो? नहीं, हम्म ऐसा नहीं होता है। जी बट जब आप इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, चीज़ों को करते हैं, तो यू यू हैव टू फॉलो सम कोड्स एंड नॉर्म्स एंड जी जी मैं रूल्स एंड आई रेगुलेशन। अंडरस्टूड योर पॉइंट, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। हाँ, तो जफर साहब एक बात बताओ मेरे या को, तो आप ये है। इंडिया से आप जी। कितनी हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश वालों को तो ठीक ठाक हेल्प मिली, इंडियन गवर्नमेंट से हम्म। भी, इंडियन आर्मी से भी। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सिंधु देश में, मतलब इंडिया कैसे आपकी हेल्प कर सकता है इसके क्रिएशन में? अच्छा देखें, आपको मालूम है कि हमारी जो सीमाएं हैं सिंध जी की, जी वो इंडिया के साथ जी मिलती बिल्कुल हैं। स्पेशली जो फौजी भाई हैं उनको ये बिल्कुल है। मालूम होगा कि हमारी जो राजस्थान से लेके गुजरात और महाराष्ट्र, ये पूरा हमारा बेल्ट मिलता है किसके जी साथ? इंडिया के साथ। और इंडिया पे जब भी इस्लामिस्ट ग्रुप्स का हमला होता है या इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने इन्वेड किया है जब भी इंडिया को, तो जी वो सिंध के ही थ्रू किया है। जी वो जी सिंध के ही सिंध थ्रू किया है। तो आप इंडिया का एक, जो मिसाल के तौर पर मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई अटैक भी कहाँ से हुआ था? हम्म सिंध से हुआ था। जी तो इंटेंशनली पंजाब इज यूजिंग अवर लैंड, जी Punjab dominated Pakistan and military establishment is using our land to attack India। ये इंडिया की एक वीक पॉइंट हो गई। जी सही है। जी हम एक तो ये एक मैंने यानी एक वार स्ट्रेटजी के बारे में बताया। जी दूसरी बात है कि रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी गए थे सिंधु माता पे स्नान करने के लिए। आपको जी मालूम है जो इंडिया में एक जहाँ से सिंधु स्टार्ट होती है। जी 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 तो which shows that our हिंद एंड सिंध के जो रूट्स हैं जी वो सिंधु माता से जुड़े हुए हैं, सरस्वती सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जी हम जी वही शिव के एक हम मैं कल्चरल रूट्स के बारे में बता रहा हूँ। जी तो इंडिया, हमारी जो बहुत ज्यादा हिस्ट्री है वो सिंध में जी मौजूद है।
जी इंडिया की रूट्स सिंध में मौजूद हैं। जी तो एक तो वो एक कल्चरली ज्वाइनिंग विच विल बूस्ट अप आवर जी फ्यूचर। जी जी ठीक है, अगर आपके नेबरिंग कंट्री एक सिंध की बन जाती है, वो फेडरेशन हो या वो इंडिपेंडेंट यूनिट हो जैसे यूरोपीय यूनियन है, तो देट विल हेल्प आपको एक सी लेवल, एक अगेन एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट व्यू से देखें तो आप अगर कराची इंडिया के साथ हो जाता है या एक यूनिट बन जाता है, तो यू आर गोइंग टू डोमिनेट इन होल रीजन। बजाय हम्म जो अगर वो चाइना के पास चला जाए, बजाय जो वो इस्लामिस्ट ग्रुप्स के पास चला जाए, तो देट विल हेल्प अस आउट। ठीक है। बिल्कुल अच्छा, जितने हिंदूज, मिलियंस के तादाद में हिंदूज जितने इंडिया चले गए, जी वो आज भी अपने धरती के लिए रो रहे हैं, अपने सिंध के लिए रो रहे हैं। उनके बिजनेसेस, अपने जमीनें, अपना सब कुछ वो सिंध में था। जी तो that history will revive. ओके We will get connected to our things. अच्छा, चौथी बात ये हो गई कि ये जो हम फाइट लड़ रहे हैं, वो जी सिर्फ हम सिंध के लिए नहीं लड़ रहे, जी वो इंडिया के लिए भी लड़ रहे हैं। जी क्योंकि इंडिया के अभी जो शत्रु हैं, मिसाल के तौर पर, एक तो पाकिस्तान हो गया, जी 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 सही है। जी मिसाल के तौर पर एक चाइना हो गया, जी एक इस्लामिस्ट ग्रुप हो गए। जी और आपको वेस्टर्न वर्ल्ड जो इंडिया को स्ट्रांग नहीं देखना चाहती सामने, तो ये सब शत्रु मिलके जी इंडिया को कमजोर करना चाह रहे हैं, सही है। सही है स्टार्ट कर देते हैं बार्किंग करने इंडिया पे। जी और पाकिस्तान जो जहादी आउटफिट्स को पैसे देता है, या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको नाम बता देता हूँ जो जी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मिसाल के तौर पर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो गई, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF हो गया, जमीयत इस्लामी हो गई, जी यूनाइटेड जहाद काउंसिल हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गए, दख्तर मिल्लत हो गई, हरकत अल मुजाहिदीन हो गए, जी अल बदर हो गया, अल कायदा इन इंडिया, गजवात हिंद हो गया, जी डी कंपनी हो गया, इस्लामिक स्टेट हो गया। जी आप अगर इनकी रूट्स एंड इनकी ट्रेनिंग एंड इनकी फाइनेंसिंग देखें, तो वो हमेशा पाकिस्तान से होती है। और पाकिस्तान की इकानमी किस पे खड़ी है? सिंध पे खड़ी है। जी 65% रेवेन्यू सिंध से जनरेट होता है। जी तो अगर पाकिस्तान का सिंध चला जाता है, जी सिंध अलग हो जाता है, जी तो यू आर कटिंग लाइफ लाइन ऑफ 75% ऑफ दीज जहादी ग्रुप्स एंड पाकिस्तान। जी इंडिया में जितना भी, देखें, खालिस्तान मूवमेंट को कौन बूस्ट अप कर रहा है या कौन पंपिंग कर रहा है मनी? जी या तो फॉरेन फॉरेन से होता है, जो जी ग्रुप्स हैं इस्लामिस्ट ग्रुप्स वो करते हैं, जी या तो पाकिस्तान करता है। जी कश्मीर में जितने भी आर्म स्ट्रगल, आर्म मूवमेंट चल रही है इंडिया के खिलाफ, उसको ट्रेनिंग और सपोर्ट कौन कर रहा है? वो पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बांग्लादेश में जमात को जो फंड डोनेशन होती है या जितना भी उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? वो पाकिस्तान से जनरेट होती है। जी तो वंस यू विल टेक आउट सिंध फ्रॉम पाकिस्तान, जी इंडिया का 75% जो हेडेक है ना, फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, हाँ हाँ वो खत्म हो जाएगा। हाँ ये तो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है भाई सही है। हम्म जितना इंडिया अभी टेररिस्ट
आउटफिट्स के से लड़ने के लिए या दुनिया में अपनी लॉबिंग करने के लिए पैसा खर्च कर रहा है या एफर्ट्स लगा रहा है, जी बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। जी और अगर ये पाकिस्तान नहीं रहेगा, टूट जाएगा, तो इंडिया का 75% हेडेक खत्म हो जाएगा और इंडिया कैन boost up its economy and start working on infrastructure and start working to strengthen the economy, not only economy but to uh, bring the prosperity to common people in India. So that's the reason I said that we are not only fighting for our sales, but we are actually fighting for India also, because it will be in favor of India. बहुत मर्तबा मुझसे ये सवाल होता है कि भाई हमने बांग्लादेश बना दिया, तो अभी वो वहां पे भी हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम चल रही है। जी तो अभी अगर हमने नया देश सिंध बना दिया या बलूच और फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जी देखें, बांग्लादेश गवर्नमेंट वांट टू बी विथ इंडिया, बांग्लादेश गवर्नमेंट वांट टू बी फ्रेंड विथ इंडिया, जी बट वहां पे जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं जिनको पाकिस्तान बूस्ट अप कर रहा है, पाकिस्तान पंप करता है मनी, जी एंड जो उनको फंडिंग होती है, जी देट इज द रीजन स्टिल बांग्लादेश हैज प्रॉब्लम्स विथ इंडिया। लेकिन अगर एक मर्तबा वो फंडिंग खत्म हो जाएगी, जी देन देयर विल बी नो हेडेक ऑफ बांग्लादेश। ओके तो जो प्रॉब्लम की रूट है ना, जी मिसाल के तौर पर कश्मीर में, या ये जो अभी अलकायदा इंडिया हिंद बन गई है, या जो ये जो डी कंपनी है, या जितने भी जो आउटफिट्स हैं जो इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जी उनकी जो मेन लाइन है जी मनी की, अगर वो आप खत्म कर दें, जी तो there will be lot of easy way for India to go further, to go more mighty in the region and be a role player in the region. So these are few factors. I think that India should help us out for liberation. जी India, it will be in favor of us economically, culturally, in our history, as our roots are connected. जी So we can achieve a lot. We जी can achieve many things once Sindh will be liberated. तो इंडिया कैसे मदद कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर इंडिया ओपनली देखें, जैसे पाकिस्तान है, वो हुर्रियत वालों को इस्लामाबाद में लाके स्टेट गेस बनाता है, उनकी ऑफिसेज ओपन करता है, जी दे ओपनली थिंग्स, जी दे ओपनली सपोर्ट, दे आर ओपनली सपोर्टिंग खालिस्तान। अगर जी कोई भी पंजाब खालिस्तान मूवमेंट का आदमी जाता है, तो दे प्रोवाइड देम ट्रेनिंग, दे प्रोवाइड देम प्लेसेस, दे गेट स्टेट गेस्ट प्रोटोकॉल। जी ले वही हम चाहते हैं कि इंडिया, मिसाल के तौर पर मैं एग्जाइल में रह रहा हूँ, बलोच लोग एग्जाइल में रह रहे हैं, पश्तून जो एग्जाइल में हैं, इंडिया अगर ओपनली मदद नहीं कर रहा है, तो लेट्स टेक अस जस्ट टू ओपन आवर एम्बेसीज, ओपन आवर ऑफिसेज, एग्जाइल गवर्नमेंट्स का जो एक जी फॉर्मेशन है उसमें जी हेल्प आउट करें। वी आर विलिंग टू वर्क with India, because I know that our roots are with India, not with Punjab dominated Pakistan, who are following the ideology of Islamist thought, and following Arab ideology. ओके दैट साउंड्स वेरी They लॉजिकल are एक्चुअली हमारी जब इतनी खूबसूरत
एक सभ्यता रही है, एक सिविलाइजेशन रही है, जी why should we not connect it to our own civilization instead of looking to Arabs, or instead of looking to the people who invaded us? Why we follow the ideology of invaders when बिल्कुल our beautiful culture and historical culture is there, and which बिल्कुल। is Sindhu Mata civilization, which is our Sindhu Sabeta, which is our Hindu Sabeta. हम्म। Looked to India जी morally, जी that India should play जी the role जी not only to support the historical people of the region, जी। but it will benefit India also in many ways. In many ways, believe me. नो नो, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। क्योंकि कश्मीर का इशू होता है, बांग्लादेश में इशू, या जहां पे भी इंडिया के सामने हेडेक आता है ना, वो पाकिस्तान से ही आता है। तो जी वंस पाकिस्तान विल बी नॉट देयर, जी you can imagine that how India can grow further. और बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी दूसरी चीज जो मैं कुमार जी देखता हूँ, वो ये है कि देखें, जो हिंदुओं के साथ वर्ल्ड वाइड या रीजन में, या जितना वो एक सिविलाइजेशन वार है। फॉर एग्जांपल, 2 days बिफोर, on 19th January, when I attended a program about exodus of Kashmir, जी so I clearly mentioned there जी that exodus of Kashmir was not started in 90. Exodus of Kashmir was started since creation of Pakistan. जी पहला जी जो अटैक हुआ था कश्मीर पे, जी वो वो 1947 में हुआ था। जी जी इवन उससे पहले भी अटैक किया गया था। जी जी ठीक है। जी और जो एक्सोडस ऑफ हिंदूज फ्रॉम सिंध, वो जी भी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से हुआ है। जी एक्सोडस ऑफ बंगालीज हिंदूज ऑफ बांग्लादेश कब जी से शुरू हुआ है? दैट वाज स्टार्टेड इन 1947। जी तो ये एक्सोडस ऑफ हिंदूज, जो बांग्लादेश हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो, जी that is not fight with some group, but it is the fight against Hindus. ये आई एक वार है जी जो हिंदूज के साथ स्टार्ट की गई है पाकिस्तान के थ्रू। जी और पाकिस्तान यानी कश्मीरी पंडित्स को बचाने का, सिर्फ कश्मीरी पंडित्स को नहीं लड़ना चाहिए ये वार। ये जो अटैक है कश्मीर में जी पंडित्स के ऊपर, जी एक्चुअली ये अटैक हिंदूज के ऊपर है। जी दैट इज अटैक ऑन हिंदूज। जी हमें उस थॉट से कि हम कुछ नहीं कर सकते, या हमारा जो है सनातना धर्म या हमारा हिंदू आइडियोलॉजी जी हमें ये नहीं सिखाती कि वी डोंट हैव टू फाइट अगेंस्ट द पीपल, या जो मिसाल के तौर पर वो गांधी और नेहरू का वो जो था कि हम सब साथ रह हम्म, सकते हैं। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें मारने, हमें निकालने की तो कोशिश ना करो। जी जी हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन जी तुम ये जो कर रहे हो, जी यानी मैं इसको एज ए सिविलाइजेशन वार देखता हूं कि हमारी हिस्टोरिकल एक सभ्यता को जी एक आइडियोलॉजी, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, उसके आधार पे चेंज जी करना चाह रहे हैं। जी तो महाभारत क्यों लगा था भाई? इट वाज फाइट अगेंस्ट डार्कनेस। जी रामायण में फाइट क्यों हुई है जी रावण के साथ? जी अगेंस्ट अगेंस्ट द डार्कनेस। जी तो हमें अपना सनातना धर्म सिखाता है कि वी हैव टू जी फाइट अगेंस्ट बिल्कुल
डार्कनेस, द पीपल, यानी बोलते हैं नहीं हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम भाई भाई हैं। तो भाई ये जो आज तक हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हमें कन्वर्ट किया गया है, हमारी सिविलाइजेशन को तबाह किया गया है, हमारी रूट्स को तबाह किया गया है, जी ये भाई कैसे हो गए? जी, बिल्कुल आपका पॉइंट लॉजिकल है। तो एक्चुअल जो जो फाइट है, जी हाँ, तो ये जो फाइट है, मैं इसको इंडिया के खिलाफ फाइट समझता हूँ। ये जो आक्रमण है जो मुसलसल इन्वेडर्स ने किया है, वो हिंदू सभ्यता, सिंधु सभ्यता को खत्म करने के लिए किया गया है। ये नहीं चाहते कि सनातन धर्मा ग्रो इन द रीजन और इन द वर्ल्ड, क्योंकि सनातना धर्मा सेल्फ रियलाइजेशन है, कॉमन सेंस है, एंड ऑल अदर बिलीवर्स एंड फॉलोअर्स, दे हैव preaching, they have commandments, they have to follow imaginary things, but हमारा सनातन धर्मा तो प्योर साइंस है ना, बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट इज द वे टू लिबरेशन, कंप्लीट लिबरेशन, जो हम जिसको बोलते हैं कंप्लीट लिबरेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, वो सनातन धर्मा में है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड द पीपल of other beliefs, they don't want that people get liberated, क्योंकि अगर लोग लिबरेट हो गए बॉडीली, माइंड के साथ, एंड दे गॉट द एजुकेशन, दे they will throw out their ideologies, they will throw out their imaginary heaven and hell। हम्म। हमारा सनातन धर्मा तो हमें सिखाता है कि भाई हेल एंड हेवन इनसाइड यू। बिल्कुल अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छाई के साथ रहोगे, भला करोगे, तो यू विल लिव इन पीस। पीस बिल्कुल। मीन्स यू आर लिविंग पीस विद इन यू। ये जफर जी साहब, हाँ। आप तो बहुत ही तो ये आपने कुछ रिलीजन को भी बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है आपने। और आपने जो प्रैक्टिकल बातें बताई ना, स्पेशली कि इंडिया को क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अगर सिंधु देश पाकिस्तान से अलग होता है। और ऑफ कोर्स आपने ये भी ढंग से एक्सप्लेन कर दिया कि वो अलग क्यों होना चाहते हैं, बिकॉज उनको अपनी सभ्यता को प्रोटेक्ट करना है। दैट वो आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आपसे मेरी आज बातचीत हुई। हम और हम अपनी अपनी सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देखें, जी, सिंध, हिंद, भारत एक एक ही ही स- सभ्यता है, एक ही सभ्यता है। इज द ओके। सेम सभ्यता। और उसी को हमने आगे बढ़ाना है, और इसके लिए जरूरी है कि जो आपका ये सिंध मूवमेंट है वो सक्सेसफुल हो। और ऑफ कोर्स मोरल सपोर्ट तो इंडिया का है ही, लेकिन अब देखिए कैसे कैसे आपका मूवमेंट आगे चलता है और आपको सफलता प्राप्त होती है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनल लेवल पे। जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, तो उसमें जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी गुड जी, विशेज है। कुमार जी, जी world has always changed because of few optimistic people only, so बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सुभाष बोस ने बोला था। हाँ हाँ। सु- बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस को मैं बहुत फॉलो करता हूँ सुभाष चंद्र बोस को, जी एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज लाइफ। जी तो अ, यानी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ठीक है मैं एग्जाइल में रह रहा हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ, मैं डेली तकलीफ में जाता हूँ, जी बहुत इश्यूज होते हैं, जी लेकिन व्हेन आई लुक एट सुभाष चंद्र बोस लाइफ इन एग्जाइल, तो मैं फिर वो उससे जो है ना एक जोश आ जाता होप है। और एक एंथुसिज्म एंड जोश आ जाता है, एंड देन अगेन आई स्टार्ट माय वे ऑफ ओह लिविंग। एक्सीलेंट। इवन बिल्कुल। आप देखें, देखें कि भगत सिंह को जब उसकी माँ ने बोला था कि व्हाई यू नॉट गेटिंग मैरिड, और व्हाई यू डोंट वांट टू लिव ए कॉमन पीपल लाइफ, हाउ द पीपल आर लिविंग, जी तो भगत सिंह ने क्या बोला था?
उसने बोला था कि भाई देखो, वो ही वाज आल्सो इन ऑप्टिमिस्टिक। तो ही सेड लुक, अगर हम सब सिर्फ अपने लिए, अपने जात के लिए, अपने लाइफ के लिए सोचेंगे, जी। तो हु इज गोइंग टू ब्रिंग द चेंज? हम्म। सो हमें आ, हम अगर देखें, भगवान राम का जो इनकारनेशन है, जी। हुआ है, तो वो भी किस लिए हुआ है? वो भी तो अपने घर में रह सकता था ना। बिल्कुल बिल्कुल। he he was the prince. बिल्कुल। He was supposed to live in his, he had everything. तो मैं बिल्कुल। ये समझता हूँ कि हर सनातनी धर्मा का फॉलोअर जो भी है, उसको आगे आना चाहिए। लेट्स join hands together and bring our roots and culture and sabeta once again to the world. थैंक यू सो मच जफर जी, आपका जो बिल्कुल ही विचार मैंने सुने आज, आई ओपनर इंटरव्यू, बहुत ही रियली वंडरफुल। और आपसे कनेक्ट होता रहूंगा मैं, और बीच बीच में बातें करते रहेंगे। जी जरूरी नहीं कि हर बार रिकॉर्ड ही करें, श्योर, मगर बातचीत जरूर होती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, इट्स रियली प्लेजर टू श्योर, इंटरेक्ट। श्योर। यू वेलकम, यू वेलकम।